Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is physical science for equity and physical science and society. Both the topic related to method paper physical science paper number 7 in B.Ed semester 2 and unit number 1. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ निष्पक्षता के लिए भौतिक विज्ञान साथ ही साथ भौतिक विज्ञान एवं समाज। यह टॉपिक B.Ed सेमेस्टर 2 के अंतर्गत मेथड पेपर 7 में यूनिट 1 में है। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि वह हेल्थ के लिए, उसके अलावा वातावरण के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार से निष्पक्षता यानी इक्विटी के लिए भी फिजिकल विज्ञान फिजिकल साइंस महत्वपूर्ण है। कैसे? तो डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं में एकता फिजिकल साइंस के द्वारा जो कि गतिविधियां साइंटिफिक होती हैं उसमें सभी तरह के लोग भाग लेते हैं और सभी के लिए वह उपयोगी होता है। जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है या साइंटिफिक व्यू से निर्माण किया जाता है वह सभी लोगों के लिए उपयोगी होता है। अगर मैं बात करूं क्लासरूम में गतिविधियों की, तो वो सभी चीज़ें जो है फिजिकल साइंस के अंतर्गत जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं वह सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होती है, जो कि इक्विटी यानी न्याय को, सामाजिक न्याय को दर्शाता है। अगर फिजिकल साइंस और समाज के संबंध की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि समाज को जोड़ने का काम करते हैं। भौतिक विज्ञान हम कह सकते हैं कि समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे डिस्कवरी हुए हैं, खोज हुए हैं जो कि समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। जैसे कि मोबाइल का प्रयोग हो, इंटरनेट का प्रयोग हो, मेडिसिन का हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हों, इंस्ट्रूमेंट हो, मेडिसिन हो, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? समाज के हर वर्ग के लोग इसे जोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यह विषय आपको और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Welcome to 6th video lecture class of B.Ed semester 2 paper number 7 physical science. Now physical science for environment, health, peace and equity. In the earlier video I have also discussed environment, health and peace related matter of the physical science. Today I am going to talk about the topic physical science for equity and physical science and society. First, physical science for equity. Science learning should be used as an instrument of social change to reduce the social economic divide. It should help fight and also for equity related to gender, caste, religion and region. Science education especially empower the student and also for social belief, nations and practices that perpetuate social inequality. Now, the following facts that is related to physical science for equity. Number 1, first point, equitable education system. Number 2, to assure educational excellence for all students. Number 3, self-sufficiency and social mobility. Number 4, diversity. And number 5, responsive to gender related issues. Now number 1, equitable educational system. Equitable educational system foster the maximum development of the individual potential. A commitment to equity ensure that all children have access to quality education. They develop knowledge and skills needed to participate effectively in community life as workers, citizens, parents, leaders, and role models for future generation. Now, second point, to assure educational excellence for all students. Such especially the all student, that is school, must appreciate the diversity that students may bring to the environment and organize schools and classroom in such a way that the overall development of all students is ensured. Now, self-sufficiency and social mobility. Equity helps to ensure that all students experience the higher level of academic achievement possible, economic self-sufficiency and social mobility. Next, diversity. Diversity should be valued in school, and each individual should be
respected. We can take example from the diversity in the properties of elements. Therefore, no gender bias should be practiced in the classroom and in allotting scientific work to the students. Now, next, responsive to gender related issues. Teachers, teacher educators, textbook writers and educational administrators must be made sensitive and responsive to gender related issues, problems and exercises as well as texts that reflect the reality of human lives and experiences should an integral part of the teaching learning experiences. Now, on the basis of our facts, it indicates that for using science as a tool to foster equity, the following actions and options should be adopted. Number one, use science curriculum as an instrument of social change to reduce the social economic divide and help to fight. Next, teachers should highlight the contribution of scientists. Next, content to the curriculum should promote respect to diverse lifestyle. Next, emphasize gender sensitization of teachers both at the pre-service stage and during in-service training. Next, use information and communication technology as a powerful tool for bridging the social divide in education and as opportunity equalizers. Next, in an activities of the science club, all students should be encouraged to participate in visit to exhibition, museum or science park. Next, during practical work, importance should be given to all students irrespective of gender, religion, caste, color, etc. And last, using an inclusive language which is simple and which uses word words from both the rural and urban areas. Now, next one is physical science and society. That is the another topic, physical science and society. Introduction. Physical science includes study of physics and chemistry. Physics is one of the most fundamental science. It deals with study of matters and energy. Study of physics help us to understand other science such as chemistry, biology, geology, astronomy, medical science, environmental science and host of the other science. At the same time, development of other sciences contribute to the development of physics itself. The connection between physics, technology, and society can be appreciated by a number of examples. Now, various facts related to the physical science with society. Number one, development of civilization. Number two, technology generate new physics. Next, significant area of contribution of physical science. Next, usage of matter. Next, scientific and technological advancement. Next, identification of specific facts related to science. Now, number one, development of civilization. The principle of labor has been utilized for thousands of years in the development of this civilization. Invention of the steam engine initiated the industrial revolution in England and in the 18th century, which had great impact of course of human civilization. Now, technology generate new physics at other times. Physics generate new technology. An example of this is the wireless communication technology that followed the discovery of the basic laws of electricity and magnetism in 19th century. Now, significant area of contribution. The most significant area of the physics can contribute in the development of alternative energy resources. If nuclear fusion experiment is controlled to generate energy, it can bring prosperity in our society. Use of matter. Chemistry is the study of properties and uses of matter. It is also one of the basic science and serve as foundation to understanding of biochemistry, molecular genetics, physics, geology, physiology, etc. Now, all these related to chemistry and important significance to the society. Next, scientific and technological advancement. Due to this, a number of scientific and technological advancement took place. Agricultural
chemicals like herbicide, fungicides, humic acid, and so on. And also plant hormone play important role in the way to cultivate crops. And identification of the specific fuels, additive, and suitable vehicular materials had made transportation efficient and comfortable. Similarly, electronics and computer technology have become advanced because of a variety of chemicals have specific properties. Now, on the basis of above facts, the advantages of this scientific development have been not been utilized in a normal way, but many of new developments have adverse effect of our environment. The study of these effects and need of the minimize damage to the environment gave rise to new branch of science, that is environmental science. Thus we find that interaction between science and society is never unidirectional. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट करूं। निष्पक्षता के लिए भौतिक विज्ञान। सर्वप्रथम विज्ञान सीखने का उपयोग सामाजिक आर्थिक विभाजन को कम करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में किया जाना चाहिए। उसे लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र के संबंधित पूर्वाग्रहों से लड़ने में मदद करती है। विज्ञान शिक्षा को सामाजिक मान्यताओं, धारणाओं और प्रथाओं पर सवाल उठाने के लिए छात्रों को सशक्त बनाता है। वह सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने में भी मदद करती है। इसके जो विचार हैं उसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। नंबर 1 समान शिक्षा प्रणाली, नंबर 2 शैक्षिक उत्कृष्टता का आश्वासन, नंबर 3 आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता, नंबर 4 समाज में स्कूल में विविधता, और नेक्स्ट में लिंग संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी। नंबर 1 समान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत क्षमता के अधिकतम विकास को बढ़ावा देती है। निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उनके भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी माता पिता और नेता उनके रोल मॉडल के रूप में काम कर सकें। श्रमिक नागरिकों के रूप में या सामुदायिक जीवन में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए समान शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट शैक्षिक उत्कृष्टता का आश्वासन। सभी छात्रों के लिए शैक्षिक उत्कृष्टता का आश्वासन देने से तात्पर्य है कि स्कूलों में विभिन्नता की सराहना करनी चाहिए और छात्र अत्यधिक अलग अलग गतिविधियों में साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में भाग लें और विद्यालय और कक्षाओं को व्यवस्थित करने में भी सभी को जो है वह मदद करें, जिससे शिक्षा का एक उत्कृष्टता का आधार का निर्माण हो सके या शैक्षणिक उत्कृष्टता का निर्माण हो सके। नेक्स्ट आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है ताकि सभी छात्र शैक्षणिक उपलब्धि के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके और आत्मनिर्भर और सामाजिक गतिशीलता को अनुभव कर सके, जो कि भौतिक विज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। विद्यालय में भी विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। तत्वों के गुणों में विभिन्नता से उदाहरण हम दे सकते हैं कि कैसे जो है एलिमेंट्स अलग होते हैं, बट उनको जो एक जगह अरेंज करके केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाते हैं। अतः विद्यार्थियों को वैज्ञानिक कार्यों को आवंटित किया जाना चाहिए और करने के पहले लिंग पूर्वाग्रह का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। लिंग संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी। विज्ञान के लिए चयन करने के लिए उनके माता पिता या बालिकाओं को माता पिता को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और खासकर बालिकाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि पक्षपात की बात न हो सके। लिंग संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी शिक्षक और साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक, लेखक और शैक्षिक प्रशासन को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। समस्याओं और अभ्यास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कुछ जो बायसनेस है महिलाओं यानी गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि सामाजिक न्याय या निष्पक्षता की बातें जो है वह शामिल हो और वो न्याय हमेशा बरकरार रहे। उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नंबर 1 सामाजिक आर्थिक विभाजन को कम करने के लिए सामाजिक परिवर्तन साधन के रूप में विज्ञान लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र संबंधी पूर्वाग्रहों में लड़ने में विज्ञान हमेशा मदद करती है और पाठ्यक्रम को उपयोग किया जाए। शिक्षकों को विभिन्न राष्ट्रीय, जातीय और संबंधित वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डालना चाहिए। विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
में लिंग, जाति, धर्म के अनुसार काम नहीं करना चाहिए और अलग अलग वैज्ञानिकों की जीवन शैली को भी परिचय के रूप में बताना चाहिए। भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति और शिक्षक के बदलते परिवेश और कार्यक्रम को पर भी जोर देना चाहिए। लिंग निष्पक्ष या लिंग आधारित या विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कि लिंग भेद की बातें नहीं होनी चाहिए, सभी को एक समान जो है वह शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इस पर जो है मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए और समाज में सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है वह निष्पक्षता के लिए निष्पक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समावेशी भाषा का प्रयोग करके, सामान्य भाषा का प्रयोग करके जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए उपयोग किया जाए उसके में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं इसका अंतिम भौतिक विज्ञान और समाज के बारे में बात करूं। भौतिक विज्ञान और समाज। भौतिक विज्ञान में भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन शामिल है। भौतिकी सबसे अधिक मौलिक विज्ञान में से एक है। यह पदार्थ और ऊर्जा के अध्ययन से संबंधित है। भौतिकी का अध्ययन हमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन तथा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है और उसका अध्ययन करने में मदद करती है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के संबंध में विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित समाज के योगदान है। भौतिक प्रौद्योगिकी समाज के बीच में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक साथ जुड़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि सभ्यता का विकास, नंबर 2 प्रौद्योगिकी, नंबर 3 भौतिकी योगदान, समाज के विकास में भौतिकी का योगदान, नंबर 3 रसायन विज्ञान पदार्थ और उसके गुणों का उपयोग, नंबर 3 वैज्ञानिक और तकनीकी और लास्ट में वैज्ञानिक विकासों के फायदे। नंबर 1 सभ्यता का विकास में खासकर लीवर के सिद्धांत का उपयोग हजारों वर्ष पहले किया गया था। स्टीम इंजन का आविष्कार इंग्लैंड में किया गया था और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई जिससे कि मनुष्य और समाज का विकास में मदद मिला। प्रौद्योगिकी कभी कभी नई भौतिक तकनीक उत्पन्न करती है, साथ ही साथ हमें नई तकनीक का अनुसरण करने में मदद करती है जैसे कि बिजली का उत्पादन या चुंबक के बुनियादी नियमों का खोज करना। भौतिक योगदान से संबंधित अगर बात करें तो भौतिक योगदान में वैकल्पिक ऊर्जा और विकास ऊर्जा, वैकल्पिक का विकास ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु संलय को प्रयोग कर नियंत्रित किया जाता है तो हम समाज कह सकते हैं कि समाज की समृद्धि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। रसायन विज्ञान में गुणों के पदार्थ के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका अध्ययन, इसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स का अध्ययन करके और साथ ही साथ जैव रसायन, आणविक, आनुवंशिकी, भौतिक यानी सभी प्रकार के एलिमेंट्स या उनके गुणों का अध्ययन करके हम सभी चीज़ों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी रसायनज्ञों द्वारा विकसित किए गए नए रसायनों महत्वपूर्ण हैं, खासकर समाज के लिए उपयोगी हैं जैसे कि कई वैज्ञानिकों ने तकनीकी प्रगति भी की, खासकर कृषि के क्षेत्र में कुछ कवकनाशी, ह्यूमिक एसिड या कुछ ऐसे हार्मोन्स का भी, प्लांट हार्मोन का भी निर्माण किया जिससे कि खेती करने में जो है वो किसानों को महत्वपूर्ण फायदा हुआ, जिससे कि भौतिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में वैज्ञानिक विकास के फायदे जो कि बेरोजगारी को दूर करने में मदद करते हैं और विकास में भी जो है वह प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान समाज को जोड़ने के साथ साथ बेरोजगारी को दूर करने में भी मदद करता है। इस प्रकार विज्ञान और समाज एक दूसरे के बीच में संबंधित हैं और इसका जो है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ ही ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।